الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین آمین الى غیر النہایہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے پکارتے ہیں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات ابھی آپ کو نایاب خطاب سننا ہے اور خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا دلکش صاحب قبلہ نے چند منٹ میں بہت اچھی باتیں بتا کر کے رخصت ہوئے۔ بڑے دنوں کے بعد آپ تو بخوبی جانتے ہیں میں اکثر بولتا رہتا ہوں، بہت اچھا ماحول آپ نے اختیار کیا، میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ آئیے ہم تمام حضرات گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکش پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک کی ڈالی پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوحو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوحو قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ میں مفہوم اور ترجمہ قرآن کے اندر جتنا بھی دیا گیا سب اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے بیان کیا، اور آپ اس آیت کریمہ کے تعلق سے اکثر سنا کرتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر شہیدوں کے بارے میں بہت اچھا مقام فرمایا ہے، وہ مرتے نہیں زندہ رہا کرتے ہیں، کہتے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ زندہ کیسے ہیں، وہ تو کٹ گئے، وہ لوگ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا ایمان کہتا ہے قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن کی بات اٹل بات ہے، قرآن کی بات پتھر کی لکیر ہے، کبھی قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پہلے کی آیت میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ نے شہیدوں کے لیے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خدا کی قسم میرا حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، کہتے سبحان اللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حسین مٹ گئے حسین کٹ گئے، میرا ایمان کہتا ہے میرا حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔
बहुत हजरात आइए करबला का मंजर आपके सामने में थोड़ी सी झलकियां डालता पेश करता चलो। आइए माहौल बना करके जरा मेरा माहौल बनाए, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक सलातो सलाम दाइम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको एक बात बताता चलूं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इनके दौरे खिलाफत के बाद, जब इनकी खिलाफत यजीदियों के पास आई, खुदा की कसम मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए हुसैन का कुछ टुकड़ा आपके सामने बयान करता चलो। आइए मैं आपको बताता चलो, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर करने का मकाम है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर आया है। अब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौरे खिलाफत खत्म हुआ, अब दौरे खिलाफत गया यजीदियों के हाथ में। जब यजीदियों के हाथ में दौरे खिलाफत मिलना था, उस वक्त के गवर्नर के पास इस बात पर खबर पहुंची। यजीदियों ने ऐलान कर दिया, यजीदियों ने कहा, ऐ गवर्नर सुनो, जाकर मुस्तफा के खानदान वालों से कह दो, जाकर मुस्तफा के नमाज़ी से कह दो, या तो मेरी बैयत कबूल करें, या तो मेरा कहा मान लें, या तो इस्लाम को छोड़ दें, या तो मेरा कहा मान लें, या तो हाथ में हाथ दे दें। सिर्फ इतना बात थी। गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, पाक हाथ कैसे नापाक हाथ में जाता। गवर्नर पहुंचा मेरे हुसैन की बारगाह में, गवर्नर पहुंचता है। पहुंचने के बाद मेरे मिल्लत के नौजवानों से गौर फरमाइए, गवर्नर पहुंचा, कर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम किया। इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है। गवर्नर इस बात को पैगाम दिया कि यजीदियों की जानिब से मेरे पास खत आया है, मेरे पास खत आया है, या तो हुसैन मेरी बैयत कबूल करें, या तो हुसैन मेरा कहा मान लें, या तो हुसैन मेरे हाथ में बैयत करें, या तो बैयत करें, या तो अपने आप को खो बैठे। इतना सुनना होता मेरे मिल्लत के नौजवानों। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ वक्त गवर्नर ये बताओ तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा उन्वान क्या है। इतना सुनना होता मेरे मिल्लत के नौजवानों, जरा गौर फरमाइए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सबसे पहली बात ये बताओ, पहले तुम बताओ, ये बताओ मैं यजीदियों के हाथ में ना दिया हाथ तो क्या होगा। गौर से सुन रहे कि नहीं आप लोग? ये बहुत दर्दनाक वाकया है। अगर आप लोगों ने सुन करके पेश किया तो मैं समझूंगा आपके दिल के अंदर इमाम हुसैन का चिराग जल रहा। इस बात को नोट कर लें। और मैं ही नहीं, अल्लाह की रहमत की मूसलाधार बारिशें हो रही है। हजरात मोहतरम, गौर करने का मकाम है। खुदा की कसम कुर्बान जाए इमाम हुसैन पर मेरे मिल्लत के नौजवानों। जब गवर्नर ने इमाम हुसैन को इस बात का पैगाम दिया, इस बात को छेड़ा, इस बात को कहा, ऐ इमाम हुसैन, या तो यजीद की बैयत कबूल करिए, या तो आप यहाँ ये इलाका ही छोड़ दीजिए। इतना सुनना होता है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुखातिब हो जाओ। गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन ने गवर्नर को क्या फरमाया। गवर्नर से कहा, गवर्नर तू बता, तू एक बात बता, अगर मैं उसकी बैयत कबूल ना करूं तो क्या देगा। उसने क्या कहा था, यजीद ने क्या कहा था, अगर मेरे हाथ ने बैयत ना दिया, मेरे हाथ में बैयत ना हुआ, उनकी गर्दन को काट करके मेरे सामने ला करके पेश कर देना पड़ेगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस बात को सुना, सुनने के बाद कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन पर हमको कितना बड़ा एहसान, हमको कितना बड़ा सबक दिया है जीने का सलीका। अगर तुमको सब्र का सलीका सीखना हो तो मैदान करबला को उठा लो। अगर चलने का सलीका सीखना हो इमाम हुसैन का वाकया उठा लो। और करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना सुनना होता है। इमाम हुसैन ने गवर्नर से पहले ही इम्तिहान ले लिया। गवर्नर से इम्तिहान लिया, ये बताओ तुम तो बहुत बड़े उरूज पर हो, तुम गवर्नर हो, गवर्नर ये बताओ अगर इमाम हुसैन अगर उसकी बैयत कबूल ना किया तो तुम्हारी क्या राय है। कह दो झूम कर सुभान अल्लाह। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारे अख्तियार को छीन लिया जाएगा। इतना सुनना होगा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। इतना पूछना था इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन से इतना पूछा था। गवर्नर ने क्या सवाल का जवाब दिया, ऐ मेरे आका हुसैन सुनो, अगर इमाम मेरे जैसे 70 गवर्नर मेरे घर में होते, आपके कदमों में रख देता। मुझे ऐसी नौकरी की जरूरत नहीं है जहां मेरे आका अलैहिस्सलाम के नमाजों को तोड़ पाया जाए। मुझे ऐसे नौकरी की जरूरत नहीं है जहां इमाम हुसैन को प्यासा तोड़ पाया जाए। ऐ मेरे मिल्लत को जवानों कुर्बान जाओ, पैगंबर
अलैहिस्सलाम पर पैगंबर इस्लाम ने इमाम हुसैन को क्या सबक पढ़ाया था, इतना सुनना होता है। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने इस बात का पैगाम दिया, उन्होंने क्या कहा, हाय अफसोस, कैसी हुकूमत आ गई है, ये कौन सी हुकूमत आ गई है, ये खिलाफे जो है यजीद आ गया था। इतना सुनना होता मेरे मिल्लत के नौजवानों, बागौर सुन लो, ये मंजर जो था ऐसा मंजर है जो खुदा की कसम पूरी दुनिया के अंदर पहली मुहर्रम की तारीख आती है, हर लब पर या हुसैन का नाम आता है, हर लब पर है हुसैन या हुसैन का नाम आता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, क्यों आता है? इस्लाम की जंगें पूरी दुनिया के अंदर खुदा की कसम इतनी जंगें हुई हैं, मैदान खैबर है, मैदान बदर है, मैदान उहद है, किसी जंग का इतना तज़किरा नहीं है। कुर्बान जाओ मैदान करबला पर, वो करबला की ऐसी जंग थी जो खुदा की कसम इमाम हुसैन ने अपने गर्दन को दे करके अपनी जीत को हासिल कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात, गौर करने का मकाम है। इमाम हुसैन जब इस बात को सुनते हैं, गवर्नर से पुकारते हैं, ऐ गवर्नर, जब तू राजी इस बात के लिए। अब दोनों की आवाज को जब इस बात को सुना, सुनने के बाद क्या कहा, अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके। इतना सुनना होता है। उन्होंने अपना इख्तियार अपने पास सब कुछ रख लिया। रखने के बाद अब नाना की बारगाह में जा रहे हैं, अब नाना की मुक़द्दस बारगाह में जा रहे हैं। अब नाना के पहली रिवायत में आता है कि नाना के पास जा रहे हैं, दूसरी रिवायत में आता है पहले अपने अम्मा जान के पास जा रहे हैं। इतना सुनना होता है। इमाम हुसैन अपना रास्ता अख्तियार करते हैं और अपने नाना जान से शिकायत करने जा रहे हैं। ऐ नाना जान, जिसके बिना पर आपने मुझको पाला था, जिसके बिना पर आपकी बेटी मेरी अम्मा जान हज़रत फातिमा ने मुझको दूध पिलाया था, आज वक्त हुआ आ गया है। इतना सुनना था। कुर्बान जो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन अभी जस्ट निकले घर ही से थे, उनकी बहन भी तशरीफ ले आई। तशरीफ ले आने के बाद कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? इतना सुनना होता। कुर्बान जो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने भाई से पूछते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? इतना सुनना होता है। भाई ने अपने सीने पर हाथ रख करके बोला, ऐ बहन, मैं नाना के पास जा रहा हूँ, अब नाना से सारी बातें बयान करूंगा। ये कौन सी हुकूमत आ गई है? या तो मेरा सर जाएगा या तो नाना का इस्लाम जाएगा। इतना मेरे मिल्लत के नौजवानों सोच रहा था। वो कब्रिस्तान यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पर तशरीफ फरमा है। तो तशरीफ फरमा होने के बाद अब उनके साथ में हजरत ज़ैनब भी तशरीफ फरमा है, अब वो भी तशरीफ फरमा है। अब जाते हैं दोनों आका की बारगाह में। आका की बारगाह में जाने के बाद खुदा की कसम वो कौन सा मंजर होगा, वो कौन सा माहौल होगा, वो कौन सी खड़ी होगी, वो कौन सा मंजर होगा। गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब दोनों लोग तशरीफ फरमा है। वो अपनी बातें बयान कर रहे हैं, हुसैन अपनी बातें बयान कर रहे हैं। अब बयान करने के बाद कुर्बान का मेरे मिल्लत के नौजवानों, वही हुसैन फरमाते हैं, ऐ नाना जान, जिस दर्द को तू आप चूमते थे, जिसको आप खिलाते थे, जिसके बिना पर आपने मेरी पैदाइश पर शहादत की दास्तान अपने दिल में सुना करके दुनिया वालों को पैगाम दिया था। कुर्बान जा मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के नबी से शिकायत कर रहे हैं, हुजूर मैं जा रहा हूँ मदीना छोड़ करके। इतना सुनना होता मेरे मिल्लत के नौजवानों। आप ही जरा बताइए, आप जब बंबई के सरजमीन पर जाते हैं, घर के अंदर से माँ को भी तकलीफ हुआ करती है, अगर शादीशुदा है तो बीबी को भी तकलीफ हुआ करती है, बच्चे नौनहाल बच्चे हैं तो बच्चे को भी तकलीफ हुआ करती है। कुर्बान जाओ, कौन सा माहौल होगा। शिकायत करते हैं, ऐ नाना जान आप सुनिए, अब मैं जा रहा हूँ, अब आपके चौखट पे मैं कभी नहीं आ सकता हूँ। गैर से निदा आती है, बेटा हुसैन जा तू, अल्लाह तेरी हिफाजत करता हुआ नजर आएगा। इतना सुनना था। कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों। अब इमाम हुसैन और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों साथ में निकल जाते हैं। उसके बाद जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मज़ार अक़दस से निकल करके अब अपनी माँ के कब्रिस्तान पर जा रहे हैं, अपने माँ के पास जा रहे हैं। अब जरा गौर फरमाइए, मैं छोटी सी बात बयान करता चलूं। आप इस बात को सोचने का मकाम है, कभी आपने सोचा तो सही, जिसकी सरजमीन पर आप राज कर रहे हैं, जिसके बना हुए प्रॉपर्टी पे आप राज कर रहे हैं, जरा आप सोचो
इस बात पर कब्रिस्तान पर कब जाते हो? अगर शबे बारात की रात ना आए तो शायद कोई टहलने के लिए चला जाएगा। कुर्बान जाओ हज़रत इमाम हुसैन पर जब कोई मुसीबत आया करती थी, खुदा की कसम जाकर अपने नाना से दास्तानें सुना दिया करते थे। गौर करो, जब रवायत को मैंने पढ़ा, इस बात को मैंने नोट किया तो कहा किताब शाहिद है, किताब गवाह दे रही, गवाही का अंबार दे रही है। अपने माँ की कब्रिस्तान पर जाकर के वही उन्हीं की बेटी हजरत ज़ैनब पुकारती हैं, कह दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ खड़े हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह अहले सुन्नत जिंदाबाद के आला हजरत मौलाना अख्तर रज़ा नूरानी साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह। तशरीफ रखें आप माशाअल्लाह। अब खतीब अहले सुन्नत जिनका इंतजार था वो तशरीफ फरमा हो चुके हैं माशाअल्लाह। हजरात, मैं चंद लम्हों के लिए हाजिर हूँ। अब आपका दिल और आपका मिजाज मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ और हजरत का नायाब खिताब हो जाए तो बेहतर होगा। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सलीम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत झूम के बोल दे सुभान अल्लाह और प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। मुर्दा वो समझे जिसका हुसैन मर गया हो। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, जिंदा। गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन के साथ अपनी माँ के पास जाते हैं, पुकारते अम्मा जान। जब मैं कहीं जाया करता था, बेटी पुकारती है अम्मा जान। जब मेरी शादी का वक्त था, जब मैं शादी करके जा रही थी, गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप ही ने मुझे सर पर हाथ रख के दुआएं दी थी। आप ही ने मुझको जो है, आप ही ने मुझको दुआओं का समरा दिया था, तो दुआओं का ताज दिया था। ऐ अम्मा जान, आज मदीना छोड़ने वाले हो, अब कौन हो दुआओं से नवाजेगा? इतना गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, खुदा की कसम वो कौन सा मंजर होगा, वो कौन सा घड़ी होगी जो इंसान मदीना छोड़ने के बाद ये दिल में आहत करता हो, मदीना छोड़ने के बाद ये दिल में आहत करता हो कि अब मदीना छोड़ करके मैं जा रहा हूँ, अब मदीना छोड़ करके मैं जा रहा हूँ, दोबारा नहीं आऊंगा। इतना सुनना था मेरे मिल्लत के नौजवानों, वक्त नहीं है वरना मैं काफी बातें आप लोगों के बताता। आने वाले वक्त में जरूर बताऊंगा इमाम हुसैन का वाकया। अब मैं सोचता हूँ हजरत का नायाब खिताब हो जाए। खुदा की मुक़द्दस बारगाह में दुआ परवरदिगार आलम हम तमामी हजरात को इतने सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाला बना, हम सबको गाजी बना, इस्लाम का सिपाही बना और परवरदिगार आलम हम सबको भाई भाई में मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई किसी तरीके से गलती हो तो अल्लाह ताला को माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।